So I have been rejected before joining Google around 20-30 companies, I would say. So, and 2nd of July, Okay. I got a call at around 3:30 somewhere, and the HR was like, "Ki, I'm calling from Google." Okay. Initially, for like 2-3 seconds, I was shocked. कितना कमाल है, देखिए मतलब एक साल में एक फ्रेशर एक गाड़ी खरीद सकता है लाइक क्रेटा और हाई If you are एसयूवी। going in a, ओके, मतलब if एक you are साल में going as बंदा a एक fresher एज and a अ full-time employee, हाँ, एक साल में क्रेटा खरीद लेगा पूरा। you can say, कि आराम से. तो हेलो उज्जवल भाई एंड वेलकम टू कैंपस पुल। Thank you, Satam. Thank you for inviting me over here. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कंग्रेचुलेट टू यू फॉर योर प्लेसमेंट एट गूगल। तो गूगल पे आने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसी रही, कैसे आप यहाँ तक आए, गूगल तक का सफ़र क्या रहा? Okay, so I was from a very basic college. It doesn't comes under tier 3 as well, I would say. So मैंने bachelor से किया है BCA. So I have seen like people are there जो BCA को समझते हैं, BCA के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता. हाँ, लोग समझते हैं कि But बीसीए से कुछ होता नहीं yes, है या तो at this point I would say कि BCA के बाद there is a thing that people mention कि BCA के बाद you need to do masters मास्टर्स for sure या to get placed. And I would agree on this Yeah. because if you have to be in a good place, so you need to do your masters. Okay, so that is the first point. And then I have completed my masters Okay. from a tier 3 college. And while I was in my masters, so I was working along with that. So I have around 3.5 years of experience, and then I was applying through multiple jobs because I need to switch my job because that was a startup and it was Okay. also remote and there was no such growth ओके। उस job में. क्या कौन सा स्टार्टअप था अगर आप It बता was so it was ComplyGate and there I was working as a data analyst. ओके So over there I have started as a intern. ओके Like after 6-8 months, I've been get hired as a full-time employee over there. So for around 3 years, I have been working over there as a full-time data analyst over there. तो वहाँ पे जो आपकी कंप्लाई गेट में प्लेसमेंट थी वो ऑन कैंपस लगी थी या ऑफ कैंपस? No, it was not on campus because Okay. there is no placement in my college. ओके So it was like I was randomly applying through LinkedIn. ओके And I got a mail like you are selected and then interview process जो भी होता है internship के लिए 3-4 rounds, basic rounds were there. तो वही सब हुआ था वहाँ पे. सो एज अ गूगल, तो जब आपकी प्लेसमेंट लग गई, जब मेल आया कि हाँ आप गॉट सेलेक्टेड, तो क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? Okay. So first thing is that I was like very shocked at first point Yeah. initially. And the thing was कि because I was initially getting rejected. या ओके I started getting rejected in 2024 October. okay. So I applied in a company and interview process हो गया, सब कुछ हो गया. And at the end, when I contacted the HR, so she was like, within 1-2 days, you will get your offer letter. But as I contacted her after like 3-4 days, and then she was like, you are rejected. ओह, So at that time, I was broken. या ऐसा लगता है ना कि भाई जहाँ तक पहुँचा और लास्ट में जाके रिजेक्ट हो गया, Yeah, right. वहाँ पे बहुत शौक लगता है। तो उसके बाद for like 15-20 days I was like कि ठीक है चलो करेंगे रीस्टार्ट करेंगे. एक होता है ना न्यू ईयर रेजोल्यूशन कर लेके मैं स्टार्ट करूँगा. हाँ। तो that was the thing. Then I started applying and learning in January again. And then उसके बाद में I started applying randomly through LinkedIn and through Naukri and different platforms that we have. There is some angel platform, I just forgot its name. वेल फाउंड। हाँ, well found, right? So I was applying through that. तो उसमें भी I was like आँख बंद करके अप्लाई कर रहा अप्लाई करते रहो जहाँ हूँ. ठीक है, I was having a single resume Okay. और मैं उसी से अप्लाई कर रहा हूँ. कोई जगह Okay. Then I got to know कि I should tailor my resume for each description. या So I started doing that. And I also purchased Naukri.com premium as well. So I started getting calls as well from there. So I have been rejected before joining Google around 20-30 companies, I would say. So I got rejected, and especially in the managerial round, in the last round. ओके So that was a like hit for me कि like मैं managerial round में क्यों reject हो रहा हूँ. तो ऐसी प्रोसेस चल रहा था, ठीक है चल रहा है, इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस कि मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ. रिजेक्ट होने का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा कंटिन्यू था. चल रहा है। हाँ. एंड देन लास्टली आई वाज रिजेक्टेड इन अ गुड़गांव बेस्ड स्टार्टअप. ओके
वहाँ पे भी सारे राउंड्स हुए एंड 18th ऑफ जून को मेरा लास्ट राउंड मैनेजर के साथ हुआ एंड देन आफ्टर दैट मैनेजर सेड लाइक okay HR will contact you and she will update you for the further steps. This June, this Yeah, okay, 2025. 2025. Yes, right. And then after that, I started reaching out to HR, and she was not answering the calls. Then I texted her, and she was like, "I'm out of leave. I'm out of office for a few days, so I'll just check and then I'll let you know." Then I connected with her around 23rd, and she answered the call, and she was like, "Yeah, okay, by tomorrow I will update you." And रात को she just mailed me, "We are not moving forward with your application. You are rejected." That was a shock. That was a shock because I was 100% confident at that time. इस बार यहाँ पे तो हो ही जाएगा कि अब इतना टाइम हो रहा है तो लास्ट राउंड हो भी गया हाँ। तो अब तो हो ही जाएगा. हो ही जाएगा. But when it happened, I was like totally shattered. Then I took a breath. So सोचा कि ठीक है एक दो दिन का pause लेते हैं. And then I started applying again. Okay. तो मैंने ऐसे Fortune 500 की लिस्ट निकाली एंड आई स्टार्टेड अप्लाइंग. और उसमें मेरा एक चीज क्या थी, आई वाज नॉट स्टॉपिंग ऑन कि मैं डेटा एनालिस्ट में तो मैं डेटा एनालिस्ट में ही जाऊंगा. Okay. तो मुझे पाइथन की नॉलेज थी, आई कैन बी डेटा एनालिस्ट, पाइथन डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट. तो जो भी रिलेटेड रोल्स थे आई वाज अप्लाइंग सब में इनटू apply दैट. हाँ, बट द डिफरेंस वाज कि मैं अपना रिज्यूमे हर एप्लीकेशन के लिए टेलर कर रहा. दैट वाज द मेजर इम्पैक्ट. So then I applied in Google randomly on 26th of June, Okay. and I was continuously applying, and I was getting rejection mail as well within like किसी कंपनी से आ रही है 2 घंटे में, किसी में 4, किसी में 1 दिन में, 2 दिन में, तो ऐसे मेल्स आ रही हैं. ठीक है, चल रहा है. And on 2nd of July, Okay. I got a call at around 3:30 somewhere, and the HR was like, "I'm calling from Google." Okay. Initially for like 2-3 seconds I was shocked, and she was like, do you have like 10 minutes so that we can discuss something?" I was like, "Okay, let's discuss." Yeah. So she just asked basic question. It was like a telephonic round. For that, in that they check the basic knowledge of a person or a person, and the basic communication they check for. तो उसके बाद में she was like, "I'll be sending you a mail, then you can schedule your interview." So I checked the slots. Then slots were available, so I chose the 7th of July slot. Okay. Okay. And there's one thing I would mention at Google, or I don't know in my case, Yeah. कि there is a huge difference between the other HRs or other HR team that I have seen बाकी कंपनियों में और in Google. Okay. तो it's like कि अगर मैं उनको मेल कर रहा हूँ ना, तो it feels like कि WhatsApp पे chat हो रही है. Within okay. 10-15 minutes they are replying. Suppose you are the manager and आप चले गए बाहर, तो their team member will respond to that mail. Okay. तो that was a great thing over there. And तो वहाँ पे she was like कि उन्होंने basic structure बताया कि पहला इंटरव्यू होगा तो वो कुछ इस तरीके से होगा, these were going to be the things, तो ऐसा कुछ. And then after that on 7th of July मेरा इंटरव्यू हुआ. ठीक है, अच्छा हुआ. And I was like still कि देखते हैं क्या होता है. After 2 hours she called again and she was like कि okay, you are clear this round, let's move forward with the second round. तो same procedure like around 1-2 दिन बाद ही मेरा second round भी हुआ. Okay. And the first round was like initially basic Python, basic SQL wala things. Okay. And in the next round it was like कि more on advanced Python, advanced SQL. Data analytics. हाँ, more on that part. मतलब एक specific उसकी तरफ डिपार्टमेंट की हाँ, तरफ. right. So then उसके बाद में there is a round comes which is थोड़ा सा advanced Python और ज़्यादा, and थोड़ा सा machine learning के towards, and थोड़ा सा SQL के towards. Then the part comes with the data, DSA. Okay. Okay. So मतलब data analytics के रोल के लिए भी DSA Yes. पूछा Because it's a company requirement. They will ask. Okay. उतना higher level का नहीं पूछा, but still कि a person ये should have डाउट knowledge. रहता है ना बच्चों को कि भाई अगर मुझे डेटा एनालिटिक्स में जाना है तो मैं DSA करूँ या ना करूँ, क्यों करूँ जब मेरे काम नहीं आएगा. तो what are your points on it? Okay, so I would say कि DSA data analytics में उतना use नहीं होता, but still you should have a knowledge. Okay. And if you are going towards a MNC, तो Like big companies तो big वो companies पूछेंगे ही. वो पूछेंगे, they will, because it's a criteria for them कि वो वहाँ से, ठीक है, उनके पास लाखों एप्लीकेशंस आ रही हैं फॉर अ स्पेसिफिक जॉब रोल, तो उनको फिल्टर तो करना फिल्टर ही करना ही पड़ेगा. Yeah. अगर वो ऑन कैंपस आती है तो वो परसेंटेज के बेसिस पे कर देते हैं. हाँ. आउट कैंपस जा रही है, ऑफ कैंपस जा रहे हैं तो वो करेंगे कि
एप्टीट्यूड राउंड हो गया या डीएसए राउंड हो गया, यही सब कुछ तो चीज़ें। चाहिए उन्हें फिल्टर करने के फिल्टर लिए। करने के लिए चाहिए होंगे। तो एट दैट पॉइंट डीएसए एंड आई वाज लाइक टोटली कि भाई कैसे होगा, क्योंकि मैंने कभी डीएसए नहीं करा था। ओके। इन माय बैचलर्स लाइक डीएससी का थ्योरी पता था मुझे, ओके ठीक है, दिस इज बबल सॉर्टिंग, दिस इज दिस वाला हाँ, सॉर्टिंग। वो तो थ्योरी सब हाँ, तो मुझे थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया था आइडिया था। हाउ डज डीएसए वर्क्स। ओके। तो ठीक है, मैंने ऐसे 4-5 दिन का उसमें प्रिपेयर किया एंड हुआ ठीक है। एंड इनिशियली जब वो राउंड हुआ एंड आई वाज लाइक कि ये क्लियर भी होगा नहीं होगा, हाँ। ठीक है। एंड देन आफ्टर 1-2 hours, like within 3 hours, she called again, okay, you are like you have cleared this round as well, and you will be having your managerial round. ओके। And when you have your managerial round at Google, they say googliness as well. Googliness, right? So googliness simply means they check your leadership skills, ओके। like the basic things, basic etiquettes, right? And how would you approach a problem? Okay, so it's like ki managerial, and there is a term that they say googliness. गूगलीनेस। Yes, Okay. that is basic etiquettes and how you are responding वी to कैन a से such द situation. सॉफ्ट स्किल पार्ट। Right. या And when I heard that term googliness, गूगलिंग। I was like, ki, how should I do this? या What it is. So I started searching on YouTube, यूट्यूब। या and YouTube पे मिला मेरे को कि it's like basic leadership skills and these are the things, basic managerial rounds, they will check your problem solving skill, तो वही सारी चीजें। But still I was in doubt कि कैसे होगा, कैसे because हुआ? मैं पहले पहले कभी भी नहीं सुना, नाम भी नहीं सुना हाँ। गूगलिंग, मैं भी सुन के भी चौंका हूँ। Right. मैंने पहली बार सुना। तो ऐसे ही एंड आई वाज आल्सो इन लाइक फियर, क्योंकि मैं पहले भी मैनेजर राउंड्स में रिजेक्ट हुआ था। ओके। हाँ। तो आफ्टर दैट आई प्रिपेयर्ड फॉर दैट, ठीक है। एंड आई वुड से इन दिस थिंग चैट जीपीटी प्लेड अ क्रूशियल रोल। ओके। हाउ आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ईच ऑफ माय इंटरव्यूज दैट आई वाज प्रिपेयरिंग, या। तो मैं जैसे भी जो सोर्सेज होते हैं जनरल वो तो होते ही थे, हाँ। बट आई ऑल्सो यूज चैट जीपीटी। में क्या करता था, ऐसे चैट जेडी उठाया, उसको समझाया समझा फॉर दिया। दिस रोल आई एम अप्लाइंग फॉर, गिव मी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट, एंड आई यूज टू प्रिपेयर विद चैट जीपीटी। Yeah, I do the same thing. Now I put the GD on the Right. ChatGPT and tell him that do this for me, do this for me. Then पूरा टेलर्ड करके मेरे को डेटा दे देता है वो कि हाँ यही पढ़ना है अब मुझे। Yes, so I used to do the same Yeah. thing. तो ऐसे करके I prepared for my managerial round, and I also took the help of Gemini as well, because it's a Google product. Yeah. तो and then after that ठीक है वो हुआ, and the manager I have interviewed, तो उन्होंने जो भी managerial round में questions होते हैं they asked for that, and after that I was still stressed कि होगा नहीं होगा, because पहले के managerial round तो मुझे experience था वो कि तो मैं था, reject काफी हुआ। रिजेक्शन फेल कर चुके हैं पहले। हाँ, तो देन आफ्टर दैट उसके बाद आई वाज लाइक कि कॉल कब आएगा। तो देन मेरी जो एचआर थी शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि विजुअल कैन वी डिस्कस, यू हैव क्लियर्ड दैट राउंड। एट दैट टाइम आई वाज इन मार्केट, सो आई जस्ट आस्क्ड हर कैन आई जस्ट कॉल यू हाफ एन आवर लेटर, एंड शी वाज लाइक कि आई विल जस्ट कॉल यू टुमारो 11 AM। ओके। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। हाँ बिल्कुल नहीं, पता नहीं मेरे को फोन आए ना आए ये ना भी आए। डाउट रहता है ना। ठीक है, क्योंकि मैं उसको कॉल करूंगा तो शी वाज लाइक कि मैं खुद कॉल करूंगी, तो देन शी डजंट कॉल एट दैट टाइम कि 11 बजे उसको कॉल नहीं आया। एंड देन मैंने उनको मेल की तो कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया, एंड देन आगे सैटरडे संडे, ओके। ठीक है, एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे भी गया। And then on Monday, she just called, okay, let's discuss further things and everything, जो भी होता है, okay, and at that time I was like, कि ठीक है, अभी भी मैं satisfy नहीं हूँ जब तक मेरे हाथ में ऑफर ऑफर लेटर लेटर नहीं नहीं आता। आएगा। और सैटरडे संडे को तो ये रहा होगा कि भाई कैसे मैंने उस टाइम कॉल क्यों नहीं करी, फिर उस time उस क्यों टाइम नहीं ही करी? बात कर लेता यार। हाँ, तो that was the thing, and on 18th she just sent me the offer letter, okay, go through this and everything. So this is how I have been through this. ओके। सो इस पे जब गूगल में सिलेक्शन हुआ उसमें फैमिली का क्या टेक था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? और मैं जो फ्रेंड्स से या आस पास बताया कि भाई मेरा गूगल में हो गया तो यकीन भी नहीं करते ना जल्दी से कि हाँ गूगल में हो गया। हाँ, तो that was the point. So I would say in this thing, my brother played a very crucial role over in this, especially my brother and my family as well. And जो भी था, जो प्रोसेस चल रहा था, it was like कि अब की सोचा था अब की हो जाएगा तभी घर वालों को बताऊंगा। हाँ। तो इट वाज लाइक कि जो था मेरे और मेरे ब्रदर के बीच में था कि हमें पता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट सो बताया, जब ऑफर लेटर आ गया, आई रिसीव द ऑफर लेटर, तब मैंने घर वालों को जाके बताया, ओके
एंड आफ्टर दैट दे आर फाइनली ओके ठीक है हाँ, हो हो गया एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड वाचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब कि हाउ डज गूगल ऑफिस लुक्स या है ना, तो दैट वाज द अनदर थिंग। तो उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन थी दैट वाज नेक्स्ट लेवल। कि ठीक है अब मुझे बाकी का और मेहनत अभी के लिए एट अभी दिस के लिए पॉइंट नहीं एट दिस करनी, पॉइंट अभी कुछ नहीं करना अभी है, मैं रिलैक्स हो गया हूँ। रिलैक्स हो गया अभी। हाँ, या सो दैट वाज दैट द वाज एंटायर यार जर्नी गूगल में लग गई तो कि बंदा आई एम रिलीफ हो ही रिलैक्स जाता है। या हाँ। सो दैट वाज अनदर टेक ओवर या तो इसमें फ्रेंड्स, आपके जो या फ्रेंड्स थे? आई रियली से आई डोंट हैव सच फ्रेंड्स, तो ओके। ऐसा कुछ सर्कल नहीं है, आई ओनली हैव लाइक माय ब्रदर्स लाइक, तो मेरा ऐसा कुछ फ्रेंड सर्कल नहीं नहीं है है, कि मैं वो भाई। कहूँगा कि ओके आई ओनली हैव लिमिटेड वंस। ओके। ठीक है, उनको भी नहीं बताया था कि बार कि अच्छा। वो था ना देयर इज वन ऑफ माइन, तो मैं ऐसे बता देता उसको कि ठीक है यहाँ लास्ट राउंड चल रहा है, अब हाँ। इसमें हो ही जाएगा। एंड एट वन फाइन पॉइंट ही सेड कि अब की जहाँ पे हो जाए ना मुझे वहाँ पे बता देना, उससे पहले मत बताना तो रिजेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा। हाँ। मैं खुद डिमोटिवेट हो जाता हूँ बिकॉज ही इज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द सेम थिंग अच्छा। फॉर अ डेटा एनालिस्ट बैकग्राउंड, तो इट वाज लाइक कि जब अब की हो जाए तब बताना, उससे पहले मत बताना। हाँ। तो आई फॉलो द सेम थिंग कि अब की जब हो जाएगा तभी सबको बताऊँ। तो वहाँ पे बैठ के कैसा लगता है? वहाँ पे ऑफिस में बैठा हूँ साथ में, जब आईआईटीज़ के बच्चे बैठे होते हैं या और भी बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे बैठे हो, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नाम की एक चीज़ होती है, वो आ सकती है। तो क्या कैसे टैकल करा उस चीज़ को जब आप होता गए है वहाँ पे? बट आई वुड से गूगल का कल्चर बहुत अच्छा है ओके। एंड स्पेशली इट ऑल्सो कि आपकी टीम कैसी है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन टीम टू टीम एज वेल, या बिकॉज मेरी टीम में सब लाइक देर आर पीपल कि दे आर फ्रॉम अ देर आर एक्सपीरियंस पर्सन ज़्यादा तो, बट देर आर पीपल की like they are like good people, and there I have seen people as well another team they are from IITs। या ठीक है, तो एक होता था कि एक खुद के माइंड में भी आता हाँ, है ये होता ओके, है आईआईटी के बच्चे कैसे होते होंगे, जब वो भी हमें भी होता है जो टीयर क्योंकि 3 और 3 वाले कॉलेज मैंने को। खुद से कभी IIT बीटेक का मैंने कभी नहीं सोचा। ओके। द मेन पॉइंट आई विल मेंशन बिकॉज आई वाज नॉट गुड इन मैथ्स, तो अगर लोग आते हैं पूछते हैं कि अच्छा हमें मैथ्स नहीं आता, हम गूगल में जा सकते हैं, यस यू कैन, बिकॉज मेरा मैथ वाज लाइक मैं ऐसे वाला स्टूडेंट था, 2 और 2 5 बता दूंगा मैं। But you are saying your math is not was not good, but in data analytics we I see have that improved यार it. मैथ तो जरूरी है। आई मेंशन दिस पॉइंट बिकॉज कि मैंने बीटेक उस वजह से नहीं किया, ओके। बिकॉज IIT आई वाज फॉर श्योर कि ठीक है भाई मैं नहीं करूंगा IIT कि मैं, और ड्रॉप लेके तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, हाँ ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं चलो ठीक है जैसे जैसे कर भी रहा हूँ, बट एट अ पॉइंट कि अगर ये हो जाए कि मेरी किसी सेमेस्टर में बैक आ जाए, क्योंकि बीटेक में बैक देयर आ इज अ लॉट सकती ऑफ है, आ मैथ्स, सकती है। मैथ्स में बैक काफ़ी आती है। एंड मैं मैंने खुद पे देखी इस चीज पे है। मैंने कॉन्फिडेंस था। देखी अपने क्लासमेट्स की, हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी बैक आती है, मैथ्स में स्पेशली बहुत बैक आती है। तो उस चीज की वजह से मेरा बीटेक का प्लान कैंसिल ही था। ओके। देन आई थॉट ऑफ डूइंग BCA। BCA के टाइम पे भी एज सच कुछ क्लियर नहीं था, एंड देयर इज अ एग्जाम फॉर AKTU हाँ। होता है जो, एंड इन दैट एग्जाम आई जस्ट गॉट दिस गलगोटिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज, या तो आई क्लियरली सेड नो कि मैं बीटेक तो नहीं नहीं करूँगा। करूँगा। ओके। तो देन आई ऑप्ट फॉर BCA। BCA में भी कुछ आइडिया नहीं था ऐसा कि क्या करना है, प्रोग्रामिंग कैसे बीसीए में क्या जर्नी थी, मतलब कैसे रहा? BCA उन 3 साल क्या सोचा कि हाँ आगे कैसे करना है, या फिर उस टाइम मस्ती वगैरह ये हाँ चीजें? तो ऐसे ही था, हाँ। बट मेरा एक ये था कि मैं कॉलेज तो बहुत कम जाता था। ओके। फर्स्ट सेमेस्टर इट वाज लाइक कि कभी कभी कॉलेजेस जा रहे हैं बिकॉज ऑफ कोविड इन 2020, एंड देन इन सेकंड सेमेस्टर आई गॉट प्रमोटेड। ओके। या थर्ड सेमेस्टर में समझ में आ गया कि अच्छा कॉलेज तो नहीं ही जाना है, तो आई यूज टू स्टे एट होम, और मैं घर पे खुद के नोट्स बनाता था। ओके। वो मॉडल होते हैं अपने मॉडल नोट्स बुक्स, रिलेटेड टू विद? लाइक कि जैसे मेरा कोई सब्जेक्ट है OS हो गया, एकेडमिक्स। हाँ तो वो मैं Okay. नोट्स खुद से ही बनाता था। आई यूज टू गो फॉर अ वेबसाइट जावा टी पॉइंट, देयर इज अ वेबसाइट, या एंड W3 स्कूल, वो तो है। तो मैं वहां से खुद से नोट्स बनाता था कि क्योंकि मुझे खुद के समझ में आए, क्योंकि एक होता है ना मुझे चाहिए चीजें बिल्कुल सिंपल मैनर में, सिंपल मैनर में, जैसे मैं मुझे तो वो इसीलिए जैसे मैं लिख रहा हूँ मुझे तो समझ आएगा मुझे ही। वो समझ में आएगा, हाँ। मुझे कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, और सही वो है। इजिली, एक होता है ना उस टाइम पे कॉलेज के टाइम पे कि रट्टा मारना है, हाँ, अच्छे मार्क्स लाने हैं सिर्फ, अब तो वही रहता है शुरू में तो सबको। तो वही सेम चीज थी मेरे साथ भी, एंड आई डिड द सेम थिंग। तो ऐसे थर्ड सेमेस्टर निकला, थर्ड सेमेस्टर में मैंने कॉलेज जाना कम किया, हाँ।
ठीक है। एंड देन उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर आया और भी थोड़ा सा और कम कर दिया, हफ्ते में एक बार चला गया या फिर 2 बार चला गया, और फिर फिफ्थ सेमेस्टर आते आते ये हो गया कि बस एग्जाम देने जाना है। एग्जाम देने भी जाना है, और कि अच्छा बाकी सारे जा रहे हैं, आज ग्रुप में प्लान बन गया कि ठीक है आज सब जा रहे हैं, तो आज जाके मस्ती पूरी करके लाइक वापस हमारा भी आएंगे। ऐसे ही होता है, सब आ रहे हैं तो मैं भी आ जाता हूँ, नहीं बस तो घर बस बैठेंगे छोड़ो। तो वही सेम चीज हुई। एंड देन कम टू सिक्स सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर में प्रोजेक्ट। हाँ तो प्रोजेक्ट क्या था, मेरे कॉलेज के बाहर ही एक शॉप थी, लाइक साइबर कैफे टाइप। हाँ तो पता चला वहाँ पे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, से उससे ले लो और वो प्रिंट आउट निकाल के दे देगा एंड उसको जाके सबमिट कर पैसे दो। दे दो। तो दैट वाज द फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेरा। ओके तो दिस इज हाउ माय बैचलर्स जर्नी, एंड सेम गोज फॉर माय मास्टर्स एज वेल। तो कॉलेज का आई यूज्ड टू मेंटेन द अटेंडेंस क्राइटेरिया बस। तो मतलब यहाँ पे फिर गूगल की तरफ या फिर आईटी की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव कैसे हुआ, इधर इतनी मेहनत कहाँ की, क्या Okay. क्या पॉइंट था वो जहाँ तक आपने लगा कि यार कर लेते हैं, मेहनत करेंगे तो हो जाएगा? At this point, I would mention, as I earlier mentioned, I'm a brother. या So he was into data analyst. ओके So उधर से स्टार्ट हुआ एंड इट वाज लाइक कि ठीक है, एक होता है ना, ठीक है मैं बीसीए कर रहा हूँ, ठीक है मुझे प्रोग्रामिंग में आई क्लियरली से मुझे सी नहीं आती, सी प्लस प्लस नहीं आती, जावा नहीं आती। ओके तो आई वाज लाइक कि ठीक है, और प्रैक्टिकल के नाम पे क्या होता था, ठीक है स्पेसिफिक कोड आ गया, हाँ जो प्रैक्टिकल करा दे वो हो गए। वो 4-5 कोड, एंड एग्जाम के टाइम पे पता ही होता था कि वही ओके यही आएंगे। पैटर्न फॉलो कर रहे हाँ। हैं, ठीक है यही 4-5 प्रोग्राम्स आएंगे, इनको ही रट के चले जाओ। तो वही चीज होती थी। तो इट वाज क्लियरली नो टू सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। तो माय ब्रदर वाज इन डेटा एनालिस्ट, तो उधर से आई गो टुवर्ड्स दैट पाथ कि मैंने पाइथन करनी शुरू की। ओके तो पाइथन में इट फील्स लाइक कि मजा आ रहा है, इजी है थोड़ी। इजी है, हाँ उसका सिंटैक्स थोड़ा इजी है, जल्दी याद हो जाता है वो चीज़ें तो हैं। वही सारी चीजें हुई। तो इनिशियली ऐसे बेसिकली वो स्टार्ट हुआ एंड देन आई गॉट माय इंटर्नशिप। ओके तो एंड देन इंटर्नशिप में थोड़ा इम्प्लीमेंट किया, थोड़ा वहाँ से सीखा, तो इस तरह से डेटा एनालिटिक्स की तरफ आई मूव। हम बात करते हैं जॉब्स की इन आईटी इंडस्ट्री, तो मोस्टली लोग एसडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यही ज़्यादातर पता है। तो रिस्क एनालिस्ट एक न्यू टर्म आई है, तो इसको आप कैसे डिफाइन करते हैं, मतलब क्या रिस्क एनालिस्ट है, तो सबको पता चलेगी मतलब क्या है ये चीज़? ओके, सो डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंपनीज रिस्क एनालिस्ट का अपना अपना अलग काम होता है। ओके तो जैसे मेरा है, मेरा डेटा एनालिसिस का भी है, थोड़ा सा एआई ऑटोमेशन भी है, एंड द रिस्क साइड एज वेल। रिस्क साइड दैट सिंपली मीन्स कि जो उनके एक्सेस रिलेटेड चीज़ें होती हैं, राइट। तो मेजरली यू कैन से थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी। ओके तो इट्स लाइक द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस। तो मतलब क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि ये एज अ सिक्योरिटी के से रिलेटेड है कि नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्यूटर की जो सिक्योरिटी है, वेबसाइट या कोई भी एप्लीकेशन है उसकी सिक्योरिटी का मेज़र करना कि क्या रिस्क आ सकते हैं क्या चीज़ नहीं है। इट्स नॉट दैट मच राइट कि यहाँ पे इतना ज़्यादा नेटवर्क और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। इट्स जस्ट कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज आई एम गिविंग यू सम एक्सेस, तो उसके पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं, तो वो चीज़ एनालाइज करना। मतलब पोटेंशियल रिस्क। हाँ, तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंपनीज, तो अलग अलग दे हैव अ स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन कि इफ दिस कंपनी टू कंपनी वेरी करता है वो इट क्या वेरीज, राइट। क्या कैसे डिफाइन करती है रिस्क एनालिस्ट को। तो इसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ती है या फिर एज अ डेटा एनालिस्ट आप प्रिपेयर करें तो you उस तरह can से हो जाएगा? as a data analyst you can go for as a risk analyst as well. So it's just कि you should have a good command on your basic skills, बेसिक स्किल्स लाइक पाइथन एसक्यूएल, these skills. right? Basic programming language, BI tools, SQL analysis and all such factors जो भी हमें data analysis के लिए चाहिए, वो सब की एक अच्छी कमांड होनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। So coming towards next thing कि as a fresher आप मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरी कि मतलब कितना कमा लेते हैं कि मतलब एक साल में ए फ्रेशर एक गाड़ी खरीद सकता है लाइक क्रेटा और हाई If you are going in a good company in an MNC आई एम और टॉकिंग अबाउट गूगल। हाँ, you can. ओके मतलब If एक you are साल में going as बंदा a एक fresher as and a full-time employee, हाँ एक साल में क्रेटा खरीद लेगा बंदा। you can say ये आराम से। So as you mentioned that you applied to many companies, तो
व्हाट यू रेट द ATS इज द स्कोर, द ATS कहाँ तक मैटर करता है? इट मैटर्स अ लॉट। ओके। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग, तो मेरे भी रिज्यूमेज रिजेक्ट हो रहे थे। हाँ। देन आई कम टू अ पॉइंट कि जहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि आई शुड फॉलो द ATS वाला थिंग एज वेल, एक बार ट्राई करके तो ट्राई देखते करके हैं। देखते हैं। तो मैंने करना शुरू किया, अपना रिज्यूमे टेलर करना शुरू किया अकॉर्डिंग टू ईच डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो तो इसके लिए मतलब कैसे टेलर करते थे? लाइक जॉब रिलेवेंट कीवर्ड्स। जॉब रिलेवेंट कीवर्ड्स, जैसे Right. मैंने सुना कि नंबर्स से अगर हम नंबर्स डालें कि Right. मतलब 500% मैंने इंक्रीज करी एफिशिएंसी, तो उससे इंक्रीज होता है। यस, सो एट दैट पॉइंट कि जब आप अपनी रिज्यूमे में क्वांटिटी मेंशन करते हो, लेट्स से आई हैव वर्कड ऑन दिस, तो मैंने ये चीज़ें 10% टाइम 10% कम 10% रिड्यूस हो Reduce गया, कर दिया। ठीक है, तो आप उसको वहाँ पे दिखा रहे हो। तो एक जो रिव्यूअर होगा, आपको इंटरव्यूअर जो भी होगा या HR होगा, ATS तो आपने क्लियर कर लिया, बट अभी सपोज आई एम एन HR, तो एंड आपने अपने रिज्यूमे में एक ऐसे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, मैंने बहुत रिज्यूमे देखे हैं, लोगों को ऐसे हाँ, पैराग्राफ्स लिख पैराग्राफ देते लिखे हुए हैं, हैं। पूरे का पूरा ऐसा लग रहा है पैराग्राफ, तो वो रिज्यूमे क्यों पढ़ेगा कोई? उसके पास हजारों रिज्यूमे हैं, वो तुम्हारे पे क्यों टाइम स्पेंड करेगा? HR मैक्स टू मैक्स स्पेंड्स ओनली 5 to 10 seconds ऑन योर रिज्यूमे, मैक्स। मतलब स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, जो आप चीज़ें उन्हें दिखाना चाह रहे हो या वो जो चीज़ें ढूंढ रहे हो उन्हें दिखनी जो चाहिए। चीज़ें वो मांग रही है वो उन्हें एकदम दिख जानी सपोज चाहिए। दे आर लुकिंग फॉर अ डेटा एनालिसिस, तो क्या मेन चीज़ें होंगी? पाइथन, SQL, पावर BI, दीज टूल्स, ठीक है, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस इफ़ यू हैव, तो वो जस्टिफाई करना चाहिए आपके स्किल्स को। ये नहीं कि अच्छा ठीक है मैंने पाइथन पे काम किया है, दैट डजंट वर्क। ओके। आपने पाइथन का काम करके ये चीज़ बिल्ड की एंड उससे इतना बेनिफिट हुआ, या आपने पहले इतना टाइम लग रहा था वो इतना रिड्यूस हो गया। So talking about we see that projects matter. How much project matter? सो इफ़ यू आर ए फ्रेशर, प्रोजेक्ट मैटर्स अ लॉट। Okay. तो अगर एज यू आर गोइंग एज अ फ्रेशर, अप्लाइंग फॉर अ फ्रेशर, बिल्ड प्रोजेक्ट्स एज मच एज पॉसिबल। डजंट मीन कि आप कुछ भी प्रोजेक्ट डाल दो, कि अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। यूट्यूब से उठा के डाल दो, वो नहीं, तो शुड बिल्ड अ गुड मतलब प्रोजेक्ट्स। कितने प्रोजेक्ट्स करें, या फिर एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत होते हैं, दो तीन हाँ, 2-3 प्रोजेक्ट्स अच्छे हों तो अच्छे हो। ठीक है। एंड इफ यू हैव अ इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, तो पहले देयर शुड बी अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ योर रिज्यूमे। या लाइक लाइक, तो लेट्स से इफ यू आर हैविंग एन एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, स्टार्ट विद दैट, ओके ठीक है, देन उसके बाद यू कैन मेंशन योर प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स। एंड एजुकेशन कम्स द लास्ट। Okay. And that extracurricular activities like certifications, like ओके, these तो that things, also matters. other achievements like hackathons. I've Okay. Hackathons क्या? achievements you can say, yeah. हाँ, that also matters, but as a fresher it matters a lot, क्योंकि रिज्यूमे में कुछ तो होना चाहिए फिल करने के लिए, क्योंकि फ्रेशर्स के पास नहीं होता कि what to या add आपके in पास the resume। प्रोजेक्ट्स ही होते हैं, या फिर एक आध इंटर्नशिप हो जाती है 3rd 4th ईयर में एज अ BTech। हाँ। BCA में तो वो नहीं हो पाता। नहीं हो पाती है। हाँ। तो ओके, सो टॉकिंग अबाउट द हाउ यू टैकल योर फेलियर्स, लाइक you feel rejection many times from many companies at the last level also, how you feel it and how you handle it and how you stand up again? ओके, सो इट्स लाइक कि यू शुड हैव अ पोटेंशियल, Okay. कि लाइक कि मुझे इफ़ यू थिंक कि मुझे ये अचीव करना है तो यू विल। अभी आई गॉट रिजेक्टेड मल्टीपल कंपनीज, तो हो सकता था मैं भी ऐसे कि ठीक है रिजेक्ट हो रहा हूँ, छोड़ दो, कुछ और कि देखते हैं, कुछ और देखते हैं। हाँ, ठीक है, होता है तो mindset। वो चीज़ें होती हैं। तो एट दिस पॉइंट यू शुड बी अवेयर ऑफ योर लाइक पोटेंशियल, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो दैट इज़ द मेन थिंग, यू शुडंट गिव अप। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कहाँ तक किस एंड तक हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। जैसे एज अ स्टूडेंट हम अप्लाई करना शुरू करा, जैसे फाइनल ईयर स्टूडेंट है, अप्लाई करना शुरू करा, कर रहे हैं, नहीं हुआ, कैंपस से नहीं हुआ, हाँ, प्लेसमेंट नहीं तो हुई, जब कैंपस तक की तो होप ही छोड़ दो, कैंपस के भरोसे बैठो ही नहीं। मत हमने कभी। उसमें भी अप्लाई करा, ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर रहे हैं, पर हमारी BTech कंप्लीट हो गई, उसके बाद गैप आना शुरू हो गया। हाँ। तो उस टाइम फियर बहुत ज़्यादा होगा कि भैया जॉब नहीं है, हाथ में गैप भी आ रहा है धीरे धीरे, तो उस टाइम पे कैसे बकअप करें अपने आप को? तो मेन चीज़ उस टाइम पे ये है कि अभी सपोज आपके पास आपका टाइम जा रहा है, ठीक है, यू आर गोइंग इन लाइक टेंस हो रहे हो, डर रहे हो कि एक्सपीरियंस कैसे जस्टिफाई करेंगे, कहाँ गया है ये टाइम, और उस टाइम पे कुछ कर भी नहीं रहे हो, भी नहीं रहे। तो वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इट्स बेटर कि कर लो, डरना है वो डरते रहो, थोड़ा वो अलग है, ठीक है, वो होता है फियर, बट एट द सेम पॉइंट अगर साथ के साथ काम भी करते रहो, मे बी
मे बी साथ में No sooner जल्दी हो प्रोजेक्ट जाए। बनाते रहो, कुछ सीख रहे हो उसको प्रोजेक्ट बनाते रहो, तो यू कैन शो दैट. यस राइट. Okay. तो अभी लाइक कि मेरा ही अगर मैं एग्जांपल लूँ तो मैं अक्टूबर से रिजेक्ट हो रहा था, तो अक्टूबर से नेक्स्ट ईयर अगस्त में जाके हुआ, तो इट्स लाइक कि 9-10 months. 9-10 months. ठीक है, तो हो सकता तो मैं भी छोड़ सकता है, ठीक है यार 4 कंपनियों में रिजेक्ट हो गया हूँ, लेट्स गिव अप कर देते हैं. बट मतलब अगर अपने अंदर लग रहा है कि यार कर सकता हूँ तो मतलब करना चाहिए तब देन यू तक. शुड गो. हाँ, और अगर अपने आप से नहीं लग रहा है कि यार अब नहीं हो पाएगा तो यू शुड गिव अप देन. हाँ, इफ़ यू, लोग ज़्यादा गिव अप तब करते हैं व्हेन दे हैव अदर ऑप्शंस. या अगर सपोज मेरा एक ठीक है, मुझे पता है मेरे पापा का बिजनेस है, मैं उसको संभाल यहाँ लूँगा नहीं हुआ तो वहाँ तो मैं हो ही जाएगा. बस. हाँ, वहाँ पे बहुत बच्चे छोड़ देते हैं कि यार ठीक है चलो नहीं हो रहा, नहीं हुआ, छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं. बीटेक में 5, 6, 7, 8, 9 लाख जो भी लगे लग गए, अब आपका धंधा तो है, बैठ जाता हूँ उसमें बस. जाके. तो दैट वहाँ इज तो अपना है द काम. मेन थिंग कि लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत मेहनत की, हुआ हुआ, नहीं हुआ छोड़ दो. Okay. So now talking about your working culture at Google offices. Now you are working at Google. वहाँ पे जा रहे हो, काम कर रहे हो, तो कैसा लगेगा वहाँ का कल्चर कैसा है कंपेयर टू अदर कंपनीज, लास्ट कंपनी यू. ओके. Work. तो एज आई वर्कड इन अ स्टार्टअप, तो Yeah. इट्स लाइक कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं कहीं ना कहीं पे, स्टार्टअप्स में स्टार्टअप्स में होती हैं, क्योंकि दे आर ऑल्सो लर्निंग. लर्निंग. या क्योंकि अभी सपोज आई स्टार्ट अ बिजनेस और एट अ पॉइंट मुझे भी नहीं पता कैसे चीज़ें करनी है, कैसे लोगों को मैनेज करना है एंड ऑल सच थिंग, तो वो चीज़ें होती हैं. बट कमिंग टू गूगल सब कुछ, यू विल फील कि सब कुछ चेंज हो गया. पीपल आर वेरी गूगली ओवर देयर. गूगल. या यस राइट, यू हर्ड राइट. तो गूगली मीन्स कि दे आर हेल्पफुल. ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क पीपल, यू कैन रीच आउट टू देम. तो वहाँ पे जाके यू विल बिल्ड एंड यू विल फाइंड अ लॉट मोर पीपल जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, दे रियली हेल्प. ठीक है, अगर आपको अपने किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए, आपको नहीं मिल रहा सपोर्ट कहीं से, तो यू कैन रीच आउट टू देम, दे विल हेल्प. तो कल्चर इज़ वेरी गुड एंड लाइक वर्क लाइफ बैलेंस इज़ ऑल्सो गुड. कि ठीक है, अभी यू कैन ईजली find like opportunities over there. And there is also one more thing in Google, if you have enough time, so you can spend 20% of your time as a, like suppose I want to work in another team as well, so I can be a part of that team as well, like on a 20%. 20%. So I'll give my 20% Time bandwidth to that specific team. ओके. So that is also a good thing. Suppose I'm in my team and I want कि मुझे इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए, या मेरा इंटरेस्ट है उस चीज़ में तो मैं वहाँ काम कर सकता हूँ. Right. गूगल अलाउस दैट. that thing, right? तो हमने सुना है गूगल में यार सोने के लिए भी जगह होती है, जिम होता है, पूल्स होते हैं, ये सब चीज़ें रियल है. Right. सब चीज़ें होती सब होता है. You will find nap pods in Yeah. each block, and I would say we have in Hyderabad there are 3 blocks, and 3 of the blocks have like micro kitchens. Like I would say in single block there are 2-3 micro kitchens are there, 3 cafes we have, and also gyms in each of the block, nap pods and massage chairs and everything is there. हाँ, तो सुन के ऐसा लग रहा है कि मतलब वहीं रह जाओ. वहीं रह जाओ बस, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि खाना मिलेगा, सोने को मिलेगा, सब कुछ जिम मिलेगा, मिल रहा है और क्या चाहिए. सब मिल रहा है कि सुबह उठो, काम भी यहीं करना है बस. सुबह ब्रेकफास्ट वहीं पे करो, डिनर करो, काम खत्म, जो तुम्हें चाहिए वो सब मिलेगा. तो इट्स लाइक कि गूगल स्पॉइल्स यू. हाँ, गूगल नहीं चाहता कि तुम उसे छोड़ के भी जाओ. तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग. So let's have a rapid fire round in which you have to answer the question fast. या So remote work or office? ऑफिस. Office. Excel or SQL? एसक्यूएल. One thing you hate about corporate life? ओके. Yeah. थोड़ा थोड़ा कभी कभी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बन पाता. Okay. तो हैदराबाद और मेरठ. मेरठ ऑब्वियसली. One word you described your first day at Google. ड्रीम कम ट्रू. Okay. So now talking about what you miss, as you mentioned Meerut over Hyderabad. What things you are missing there? फूड. Food, obviously. फूड. बट आई वुड से वन थिंग, हैदराबाद का वेदर इज गुड, Okay. बट स्टिल द फूड. तो स्टूडेंट्स आर वॉचिंग नाउ. सो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे वो आगे बढ़ें, क्या चीज़ करनी चाहिए, किस तरह से अप्रोच करें कि वो एक सक्सेसफुल हो पाए ज़िंदगी में? So at first they should have a roadmap. ओके.
ये नहीं कि कभी ये कर लिया वो रोड कर लिया। मैप्स कैसे बनाए, मतलब कहाँ से, कहीं से, गूगल से या फिर Google, उससे अभी तो बहुत सारे options यूट्यूब हैं। से किसी का रोड मैप ले लें या फिर खुद बैठ के बनाएं। खुद बैठ के बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी आपके पास चैट जीपीटी भी है, तो चैट जीपीटी को एक्सप्लेन करो, ठीक है मुझे पाइथन की इतनी बेसिक नॉलेज है, ठीक है, एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डेटा एनालिसिस थिंग, तो मुझे कैसे जाना चाहिए, ठीक है, आपको लग रहा है कहीं पे कि पहले पाइथन का, सपोज यू वांट टू लर्न पाइथन, पाइथन का पार्ट मांगो सिर्फ, ठीक है, एंड उससे टाइमलाइंस लो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम 1 महीने की जगह 15 दिन में कर सकते हो, वो उसको मेंशन करो, तो इट विल गिव यू अ प्रॉपर पाथ। ये नहीं कि आज मैंने पाइथन कर ली, ठीक है, शाम के टाइम मैंने बैठ के थोड़ा सा सीक्वल कर लिया, चलो कल मैं बैठ के पावर बीआई कर लूंगा। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट एज वेल, कि एक स्किल सीख रहे हो एटलीस्ट पहले उसको तो कवर अप करो। मास्टर करो। तो दैट इज ऑल्सो अ पॉइंट, दे शुड हैव अ रोड मैप इनिशियली। उन्हें तो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे करना है, यानी कि कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, उससे चीज़ें बिखर जाएंगी। राइट, सो दे शुड हैव अ प्रॉपर रोड मैप, अ विजन कि कैसे चीज़ें अप्रोच करनी है, एंड अ एटीट्यूड टू नेवर गिव अप। How to utilize the resources that teachers of the college, or if there are resources like we have the incubation or the teachers here, how to, So or alumni network. yeah, that also matters in college life, I would say. Yeah. If you are getting a college network or alumni network, that is also a plus point. Because at a point, suppose if I'm not being able to refer you today, maybe tomorrow I will, Yeah, right? So you should have a good connection good with them. connection with you. And it's not like कि आप उनसे सिर्फ लो ही, it's like कि you should have a give and take Give and relationship. take. Yeah, क्योंकि मैं क्यों ही करूँगा? क्यों करूँ? So that is also a point. So either you should have a good connection कि ठीक है मैं उनको बोलूँगा वो कर देंगे, और a give and take relationship you should have. एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, कम्युनिकेशन स्किल्स, how much extent it matters Matters a lot. matters a lot. Because How in a way? ओके सपोज लाइक अभी मैं इंटरनल टीम में बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मली, बात कर रहा हूँ कैजुअली, चल रहा है, हिंदी में बात करूँ इंग्लिश में बात करूँ, डजेंट मैटर, बट एट अ पॉइंट सपोज आई एम गोइंग टू लीड Yeah. कुछ चीज़ें, कुछ प्रोजेक्ट, तो देयर विल बी अ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, तो एट अ प्रोफेशनल लेवल यू शुड हैव अ कम्युनिकेशन स्किल, and in nowadays in most of the companies they have a telephonic round majorly, where they check their your communication. So that is also a major point कि you should have a good command on your communication. And for the communication, I don't think so you are like कि इतना ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा. You can start watching podcasts in English, right? Initially अगर नहीं समझ में आ रहा है तो subtitle, Subtitles, yeah. Subtitles लगा लो. राइट, तो अगर सपोज मूवीज देखना शुरू कर दो, पॉडकास्ट बोरिंग लग रहे हैं, एंड स्टोरीज रिलेटेड थिंग कि आप भी रिलेट कर पाओ रियल सिचुएशन से, कि दिस इज हाउ, ओके अगर मेरी लाइफ में ये सिचुएशन आए तो मैं इसको ऐसे पूछूंगा, ऐसे टैकल करूंगा, तो दिस इज हाउ यू कैन. Okay. So there's nowadays hackathons are booming. So what your take on the hackathons? That students should participate. I think you didn't participate. No, in I any. didn't. So in the BTech we have many hackathons running in other colleges and on the national levels also, SIH. हाँ. So what your take on this? So they should, because उधर जाके you will learn a lot. Suppose it's not about कि मुझे जीत के ही आना है. हाँ. At least you are participating and you are learning. So if you are building something, you will use your own brain. Yeah. ठीक है, तो अभी नहीं तो कल you will know कि अच्छा ठीक है मैंने इसमें ये चीज़ की थी, तो मैं कल को जाके इसको यहाँ पे improve कर सकता हूँ. You will meet a lot of people. You will see different people building different things. तो पहले होता है कि अगर सपोज you are winning that hackathon और मैं हार गया, तो क्या रीज़न है उसके पीछे का? पता चलेगा कि भाई कहाँ लैग कर रहा हूँ, ये चीज़ पता चलेगी. राइट, सो यू लर्न विद योर फेलियर्स, कि जहाँ पे आप फेल हो रहे हो तो उसी चीज़ से सीखो, वहीं पे इम्प्रूव करो खुद को, कि नेक्स्ट टाइम हो तो मैं उस चीज़ को टैकल करके अलग आगे बढ़ूँ. हाँ, और हैकाथॉन्स में हम बाहर जाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, कनेक्शंस बनते हैं, तो हमारे नेटवर्क बिल्ड होता है, तो उससे हमें काफ़ी फ्यूचर में हेल्प मिल सकती है. वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. और ऐसा इंटरनेशनल लेवल पे होता है, दूर दूर से बंदे आते हैं. देयर आर, तो यू शुड. तो थैंक यू उज्जवल भाई कमिंग टू अस. आपने टाइम निकाला बहुत हमारे लिए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और फ्यूचर में भी हम आपसे कनेक्ट रहना चाहेंगे. थैंक यू thank सत्यम you. फॉर दिस, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी, थैंक यू.